पढ़ाई करो चुपचाप, बैठे रहो उधर। इस क्लास में सिर्फ एक ही हीरो है, वो मैं हूँ मैं। क्या समझते खुद को? हाँ, टीचर जब बात करे तो खड़ा होना चाहिए। हाँ, जोक है क्या? यू डोंट नो हाउ टू ड्रॉ अ सर्कल, you don't know how to use a compass. So this was the few words that was used by my teachers in my school, not in my school, my college, but I'm not gonna state which college because I'm going to use this channel to submit my assignments as well. But why is like shouting, there is a law that bans the physical punishment of student in India. Means it is still is a कहीं कहीं पे ये अभी भी प्रैक्टिस होता है, लाइक फिजिकल पनिशमेंट, बट दैट इज़ अ क्रिमिनल ऑफेंस एंड कुड बी पनिश्ड बाय लॉ. माई क्वेश्चन इज दैट व्हाई इज नॉट येलिंग बैंड? येलिंग मतलब दूसरों पे चिल्लाना क्यों है भाई? आई एम अ फकिंग सॉरी, आई एम अ अडल्ट, आई एम 18, आई एम 19, आई नो माई कॉन्स एंड आई नो माई प्रोज. Why the hell are you yelling at me for doing something, for missing some assignment? That doesn't concern you because you are getting paid either way. You will be paid either way, even if I submit my assignment or not. I'm not saying that I shouldn't. It is my due responsibility to submit my assignment, but the concern of this matter is that why actually I have submitted all my I have submitted all the assignment on time. I'm just saying that there was this class where I was, a bit lazy, I must say, and it is not my mistake to be that lazy in the class because I could be, but yeah, so I get yelled at. So while getting yelled at, I was not like मुझे बुरा नहीं लग रहा था कि I was getting yelled at. I was trying to shake my fingers like consciously so that the teacher assume that I'm scared and she will like not yell at me more. I was like shaking my fingers. I was like nodding my head. I was saying sorry, but in the back of the mind I was like trying to look more sincere, and that's what it is. But you know, इंडिया में क्या होता है, हम लोग टीचर को भगवान मानते हैं. दे आर नॉट, दे आर जस्ट टीचर्स. वो लोग एक जॉब कर रहे हैं ऑफ एडुकेटिंग आवर सेल्फ. लाइक जैसे कि आपके पापा मम्मी हैं, बहुत लोग उनको भगवान समझते होंगे. वो लोग भी भगवान नहीं है, डॉक्टर भी भगवान नहीं है. टीचर बस अपना जॉब कर रहे हैं. दे आर गेटिंग पेड फॉर एडुकेटिंग आवर सेल्फ एंड दे आर नॉट in India they are not getting paid well enough. I know that, okay, and they just do a respected job as that of a doctor, but they are not gods. They are not gods. तो आप लोग मेरे पे चिल्ला क्यों रहे हो? One study shows that only 5% of students benefits from yelling, getting yelled at. Only 5%. और वो 5% इज़ नॉट लाइक सम जादू हो गया और वो लोग सुधर गए. नहीं, दे जस्ट फियर द टीचर्स एंड दे फियर गेटिंग येल्ड एट, सो दे जस्ट चेंज और दे pretentious, pretentious. But the problem is that fear never lasts. It plants the seeds of revolution in us. The students become much more rebellious in later on that life. That studies also show that if you just look up ChatGPT and ask that 5% of the student benefit, you will find that study actually. It is a study on researchgate.net. So students लोग सब चिल्लाने से benefit नहीं कर रहे हैं. एंड ऑल्सो ये मतलब टीचर को लगता है कि चिल्ला के स्टूडेंट्स सुधरेंगे, बट क्या हो रहा है? दे आर गेटिंग मच मोर बैड, दे आर गेटिंग मच मोर रिबेलियस, एंड दिस इज़ अ बैड थिंग. मतलब तो फ़ायदा क्या हुआ चिल्लाने का? इट इन माई कॉन्टेक्स्ट दैट दिस इज़ टू लाइक डिसिप्लिन द चिल्ड्रंस, बट दे आर नॉट गेटिंग डिसिप्लिन, दे आर गेटिंग इवन मच मोर रिबेलियस, and that's a bad thing because you don't want that. You want the opposite of that and getting opposite result of that. अब बहुत लोग, मैं अब दोनों तरफ से आर्ग्यू करूँगा, फ्रॉम द टीचर साइड एंड फ्रॉम द स्टूडेंट साइड एज वेल.
इंडिया में टीचर्स का अर्निंग बहुत कम है, आई नो दैट। एंड ऑल्सो आपके स्कूल में कम से कम ऐसा एक टीचर होगा जो आपका 2 सब्जेक्ट लेता होगा क्लास 10 से पहले, आपको पता है। नो, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। आपका कोई ना कोई ऐसा सर या मैम होगी जो आपका लाइक इकोनॉमिक्स भी लेती हो, साथ में ज्योग्राफी भी लेती हो, या कोई ऐसी मैम हो जो हिस्ट्री लेती हो या ये लेती हो। बट यू नो इंडिया में हर एक टीचर लाइक दे आर ओवर वर्क टू देयर लाइक लास्ट ड्रॉप ऑफ द ब्लड, दे आर ओवर वर्क। तमिलनाडु में एक स्टडी हुआ था जिसमें 300 प्राइवेट कॉलेजेस के 85% टीचर वेर डायग्नोज विथ हाई एनसीएस और हाई स्ट्रेस लेवल, जहाँ पे उस स्ट्रेस लेवल पे लोग सब लाइक आर कंसिडर्ड नॉट टू बी फंक्शन प्रॉपरली, दे लिव विद दैट। यू नो यूरोप में जिस प्रेशर कंडीशन पे पीपल आर कंसिडर दैट दिस ओके, ये पर्सन इज दिस मच स्ट्रेस, he is not a functional man right now, let's give him some work off, let him relax, then he will be a much efficient person. But इंडिया में उसी प्रेशर पे टीचर्स काम किए जा रहे, लोग काम छोड़ नहीं रहे। तो आप लोग सोच सकते हो द फ्रस्ट्रेशन दे बिल्ड अप। दूसरा कि पैसा बहुत कम मिलता है, इट्स ट्रू। कभी भी आप किसी रिच टीचर को नहीं मिलोगे आप अपने लाइफ में, अनटिल यू नो अंबानी का स्कूल हो या ऐसा कोई प्राइवेट स्कूल हो जहाँ पे दे आर पेड हैंडसमली। मैं बात कर रहा हूँ 99% ऑफ द स्कूल्स इन इंडिया और हाई कॉलेजेस इन इंडिया, दे आर पेड very little. They are just paid to survive. They are not paid to flourish, to fancy. They are just paid to survive. What a line I said. They are not paid to fancy. They are paid to survive. They are not paid to fancy, but they are paid to survive. They are just paid enough to get by the month, and for the next month the cycle repeats. दूसरा बात, जॉब इनसिक्योरिटी। यू नो कोचिंग का पता नहीं, बट मैं अभी कॉलेज और हाई स्कूल का बात कर रहा हूँ। कोचिंग में भी उतना, मैं कोचिंग में खुद रहा था 11-12 फॉर जेई। कोचिंग में उतना मैं ऐसे ख़राब बैच में नहीं था। आई वॉज इन द A1 बैच ऑफ माई इंस्टीट्यूशन, और बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन था। सो वहाँ पे भी टीचर वेर वेरी फ्रेंडली। सो क्या इसका रीज़न मनी हो सकता है? मे बी नॉट मे बी वन ऑफ द रीजन, मनी इज़ वन ऑफ द रीज़न। बिकॉज मैं बहुत बड़े इंस्टीट्यूट में रहा हूँ और वो लोग तभी डांटते थे जब टॉपिक ना समझे। वो लोग बिन फालतू का ह्यूमिलेट नहीं करते थे। एंड इट्स द ट्रू थिंग। आप लोग भी 11-12 में रहे होंगे, किसी भी कोचिंग में ज्वाइन किए होंगे, दे आर नॉट गोइंग टू ह्यूमिलेट यू, दे आर मच मोर। ऐसा क्यों है कि हाई स्कूल और कॉलेज के टीचर आर लाइक वेरी लेस फ्रेंडली, बट इन कोचिंग वो लोग ज़्यादा हैं? बिकॉज कोचिंग के टीचर्स आर मच मोर फ्रेंडलियर, बिकॉज दे आर पेड इनफ, दे आर पेड टू फैंसी। ओके, बट अगर हम लोग फ्रस्ट्रेशन पे ब्लेम डाल सकते कि यू नो मनी इज़ लाइक अ फैक्टर, देन फ्रस्ट्रेशन इज़ द फैक्टर। बट आई डोंट कंसिडर frustration to be a factor that you know avail the teachers to yell on the students, because in India every stream student face immense, I want to put emphasis on immense pressure themselves, and in some condition they are facing much more like pressure than the teacher themselves. आई एम नॉट सेइंग कि टीचर का फैमिली है, उनको पैसा कमा के अपना फैमिली को करना है, बट एक स्टूडेंट को बस पढ़ के खुद का लाइफ सेटल करना है। आई एम नॉट सेइंग दैट। इन दैट एक्सपेक्ट द टीचर इज़ यू नो ऑब्वियसली मच मोर एक्सपीरियंस्ड, और उसे होना भी चाहिए एक्सपीरियंस, बिकॉज एस टीचर इज़ जनरली 8 years ओल्डर देन द स्टूडेंट। सो अगर आप 8 साल बड़े हो तो आपको पता होना चाहिए कि दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक योर फैमिली सफाइज। नहीं तो आप बच्चा मत करो, आप शादी मत करो, आपका तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हुआ ना। आप उस चीज़ को कंपेयर नहीं कर सकते स्टूडेंट का। मैं बात कर रहा हूँ वर्क ओवरलोड। स्टूडेंट को 50-100 सब्जेक्ट करना पड़ता है, बट एक टीचर को बस एक सब्जेक्ट पढ़ाना पड़ता है, चेक करना पड़ता है, और उसमें लोग चिल्लाते हैं। इतना क्यों चिल्लाते हो भाई? आई वांट लाइक अपील टू द मासेस, प्लीज बैन येलिंग। इट इज़ लाइक बुलशिट. It doesn't give any long-term effect. It doesn't have any benefits. It is just yelling.
And so I going to stop my yapping session, and I'm gonna recap on what I said. So yeah, there should be a law that bans yelling as well, because yelling doesn't benefit any student. Only 5% of the student, also they themselves said that they fear the teacher, not they have suddenly got disciplined. They just fear the teacher. They fear the part where in the assembly of a classroom they are pinpointed. They are made to be stand up. They are made to be humiliated among the masses, among their peers, amongst the students who have known them as their equals. Because humiliation makes a particular student stood low. They feel low amongst their peer, where he should belong equally, where he should stand shoulder to shoulder. He is now bowed down, looking at the floor, not realizing what he or she has done wrong, why he or she is below everyone else. uh, so this was a much more disciplined part of this. Thank you very much.